thoracic vertebrae, and now we are seeing the lumbar vertebrae. The lumbar vertebrae can be identified on the basis of exclusion criteria. Exclusion criteria. First criteria, the absence of transverse process, after absence of foramen transversarium on the transverse process, that leads that this is not cervical. And the second feature is absence of costal facet on the body as well as transverse process, that exclude that this is not thoracic vertebra. Okay, later on as an additive factor you can tell that the body is massive, you are getting extra processes on the tubercles, extra processes on the tubercle, that is the mammillary body and accessory bodies. Okay, but before that you have to make sure that two exclusion criteria should be fulfilled here. Okay, that's the thing. Now later on, if you have seen that these are, if you are confirmed that these are lumbar vertebrae, how to identify that which one is L1, L2, L3, L4, L5? Fine. For that, first of all, you should be knowing the parts of the vertebra. This is the body, okay? This is the transverse process, this is the spinous process, and these are what? Tell me. These are what? Let them tell. These are what? Bolo. Articular facet, superior articular facet and inferior articular facet. If you will see the proper lumbar vertebra, there will be slight twisting in the articular facet direction. Okay, look at this. Okay, इसमें body पे facet है. It is a thoracic vertebra. Okay, now look at the articular facet. कैसा दिख रहा है? Plain, flat, ऐसा. Now focus your attention here. How the facets are looking. Twisted नहीं दिख रहा है. थोड़ा सा turn. It is not flat. Okay, it is not flat. देखो, ये थोड़ा सा सब twisted है. Correct? इस पे भी देखो, ये मुड़ने लगा है. The direction is changing. Now look at this. Superior articular facet is facing backward और ये वाला थोड़ा ऐसा laterally हो गया है, laterally turn हो रहा है. Unlike to these facets which are straight, plane में दिख रहे हैं. Okay, एक plane में दिख रहा है सर, एक plane में. This is flat and this is slightly turned. Okay, एक medial side में, एक lateral side में ऐसा turn होता है. Now what we have to do, there is a clue to identify L1, L2, L3, L4, L5. Okay, बाकी तो सारे फीचर्स वही रहेंगे. बॉडी रहेगी, पेडिकल रहेगी, लैमिना रहेगी, सुपीरियर आर्टिकुलर, इंफीरियर आर्टिकुलर एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस. व्हाट इज द मेन डिफरेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक डॉट्स वेयर द आर्टिकुलर फेसेट्स आर सीन. सुपीरियर के लिए 2 डॉट, इंफीरियर के लिए 2 डॉट. समझा ना? ऐसा 4 डॉट बना दोगे. इफ यू विल मेक दीज 4 डॉट्स, यू नो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट अ स्क्वायर. वॉट एवर स्क्वायर होगा. अब द मेन डिफरेंस कम्स देयर. देखते चलो, सब लोग ऐसे फोकस करो यहाँ पे. Now look at it. Are you feeling that if you will join the 4 tubercles, the 4 points, what will be the shape of that square? You know, एक 4 बाउंड्री से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर मिलेगा. What? How will you define? किसी में वो स्क्वायर होगा, किसी में वो वर्टिकल. Look at this. इसके अगर चारों को मिला दे तो you will get a vertical rectangle. Getting? इसके अगर स्क्वायर्स को मिला दे you will get a horizontal rectangle. इसके भी horizontal rectangle. और इसके कैसे मिलेंगे? वर्टिकल. बट aren't you seeing, क्योंकि तुम्हारी ज्योमेट्री कैसी है, ये वर्टिकल स्क्वायर है या ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है. यू नो, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट के बीच में डिफरेंस मोर and the inferior articular facets are more closely situated. Can you see? Okay, so if you will start from up to down, okay, the things are going to trapezium. पहला L1 का trapezium, नीचे और जाओ vertical rectangle, थोड़ा और नीचे जाओ square, और थोड़ा और नीचे जाओ तो almost थोड़ा बहुत square जैसा ही, और सबसे नीचे चले जाओ so it become a horizontal rectangle. Getting my point? So इस तरीके से वेरिएशन होता है. See, all the things are God made. We are not created it. We are just making these theories to understand कि how to identify. Now look at these. एक बार फिर से रख के दिखा देती हूँ सर. Now look. Okay. First of all, now look at these. The 2 articular facets above, 2 articular facets below. This is looking like a trapezium. Okay. Now again if we are going, it is more or less trapezium only. मतलब कि अलग अलग बॉडी का it could be L1,
L1 only. Okay, now look at this, it is more vertical rectangle. Both facets are closely separated. Okay, vertical rectangle, so maybe 2 square का more or less square, इसको नहीं बोल सकते, हाँ, it could be said square. Look at these facet difference. Okay, so ये more or less square, मतलब ये कहाँ चला गया, 3 and 4 ट्रांजिशन जोन में वी कैन से 3 and 4 एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि एग्जैक्टली बताओ कि 3 कौन सा है. इसको मैंने अलग रख दिया है जस्ट टू शो यू कि ये थोरेसिक थी, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं. द लास्ट वन, द मैसिव वन, नाउ लुक एट दिस, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल. इसके साथ साथ एक और थी शायद मेरे पास हॉरिजॉन्टल, ये शायद हॉरिजॉन्टल स्क्वायर में ही जाएगी. एक दो और बॉडी रहती है जिसमें प्रॉपर हॉरिजॉन्टल स्क्वायर दिखता है वो. ओके फाइन, विल यू बी एबल टू डिफ्रेंशिएट, करेक्ट ना. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट विल बी आस्क्ड लंबार वर्टिब्रा में कि L5 की एक और फीचर होती है, कैसे तुम्हें बताना है वो मुझे लेट मी सी. कैन यू सी दिस वन, अब अकॉर्डिंग टू यू किस वर्ड कौन सा नंबर हो सकता है ये, 2 3 फर्स्ट 2, मतलब 1 2 के बीच में हो सकता है, 1 2, करेक्ट ना. नाउ सी द ट्रांसवर्स प्रोसेस, कहाँ पे अटैच है एग्जैक्टली, व्हाट इज द पॉइंट वेयर इट इज अटैच. पेडिकल, बेटर टू से पेडिकल और लैमिना यू नो ना, लैमिना एंड पेडिकल वहाँ के जंक्शन पे. बॉडी से कुछ भी लेना देना नहीं है ना, बॉडी पे नहीं आ रहा है. व्हेन यू विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट L4 L5 पे पहुँचोगे ना, so this transverse process start encroaching over the body. That is also one of the most important criteria, you know. Viva में some senior teachers they may ask. Now look at this. This is horizontal square ना, थोड़ा बहुत. इसमें देखो ट्रांसवर्स प्रोसेस कहाँ पे आ गई है, चढ़ गई है बॉडी पे, पेडिकल से हट के वो बॉडी पे इंक्रोच कर रही है. एंड दिस ट्रांजिशन हैपेंस, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम L1 L2 L3 जब तुम जाओगे ना, 4th and 5th में, स्पेशली इन 5th, the transverse process encroaches over the body, not going to the pedicle. This I have experienced during my PG when these questions are being asked. Okay, and teacher ask कि इसके ये क्या चेंजेस आते हैं. यू शुड बी नोइंग ये इंक्रोच करने लगता है बॉडी पे. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पेडिकल वो बॉडी पे चला जाता है, ये भी एक चीज़ है. ओके, नाउ ट्विस्टिंग भी हमारी थोड़ी कम हो जाती है. सी द आर्टिकुलर फेसेट का ट्विस्टिंग, इधर जाते जाते वो थोड़ा फ्लैटन होने लगते हैं, रिलेटिवली फ्लैटन, बिकॉज L5 जो होता है ना वो रिलेटिवली कम मोबाइल होता है ऊपर वाले के मुकाबले. ओके, एंड देन उसको सेक्रम के साथ आर्टिकुलेट भी करना होता है. दैट इज़ वाई these articular facets also become relatively plain unlike the twisting. Okay, done. Now talking about the attachment, very few attachment points, attachment things are being asked. तुमको एग्जाम में इतने an identification पे हो जाता है तुम्हारा, but if the examiner is going to ask what are the important muscles that you know which are attached to, you have to tell. Now have you seen posterior abdominal wall का diagram कभी भी नहीं देखा? Have you heard about psoas major muscle? Yes. So psoas major muscle पूरा lumbar vertebra से होके नीचे चला जाता है. एंड कहाँ पे होती है, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के आगे एंड बॉडी, ये जो ट्राइंगुलर एरिया है ना, ऐसा मैंने घेरा ना, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये psoas major muscle ऐसे जाएगी, करेक्ट ना. तो इसका अटैचमेंट कहाँ पे होगा, इन द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस. ये पूरा का पूरा एरिया इज अटैच्ड और कवर्ड बाय द psoas major ऑन बोथ साइड. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है, और फिर नीचे चला जाता है, श्वास का टेंडन हो जाता है. सो श्वास मेजर मसल यहाँ पे, देयर विल बी अ फेशिया विच विल बी कवरिंग द श्वास मेजर मसल. ये पूरा फेशिया रहेगा. दिस ट्रांसवर्स प्रोसेस टिप, दिस गिव्स अटैचमेंट टू thoracolumbar fascia. thoracolumbar fascia. And when you will read further on this thoracolumbar, I think lecture नहीं हुआ है इनका thoracolumbar fascia का. When the thoracolumbar fascia will be taught to you in detail, you will come across कि उसके 3 laminas हो जाते हैं, उनके 3 laminas splitting हो जाते हैं. ओके, एंड उनके अंदर डिफरेंट मसल्स होते हैं. फाइन, नाउ मूव थोड़ा पोस्टीरियरली, थोड़ा पीछे आ जाओ, मतलब ट्रांसवर्स प्रोसेस के पीछे आ जाओ. दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द मल्टीफिडस मसल. ओके, पूरा का पूरा मसल मल्टीफिडस एंड इरेक्टस स्पाइनी से कवर रहता है. ओके, सो आगे में हमने देख लिया psoas मेजर एंड पीछे में इरेक्टस स्पाइनी एंड मल्टीफिडस का पार्ट आएगा. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड अलॉन्ग विद दैट क्वाड्रेटस लंबोरम भी आता है. क्वाड्रेटस लंबोरम एक्चुअली
अभी मैं तुमको एक्स्ट्रा क्यों नहीं बता रही हूँ. व्हेन यू विल नो द थोरैकोलम्बर फेशिया, इट हैज़ गॉट 3 लैमिना, 1 लैमिना, 2 लैमिना एंड 3 लैमिना. उन तीनों के बीच में मतलब 3 लैमिना अगर हुआ तो उसमें 2 मसल्स रहेंगे ना. यू विल कम अक्रॉस कि एक में क्वाड्रेटस लंबोरम रहती है, दूसरे में इरेक्टस स्पाइनल का पार्ट. ठीक है, दिस मच ओनली विल बी आस्क्ड टू यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम जनरल क्वेश्चन, जनरल अटैचमेंट थिंग्स फ्रॉम द वर्टिब्रा कुड बी आस्क्ड. व्हाट आर द जनरल थिंग्स? बॉडी के आगे क्या होती है, किस चीज़ का अटैचमेंट होता है बॉडी के आगे. विच स्ट्रक्चर्स टू अटैच, विच स्ट्रक्चर इज अटैच टू द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द बॉडी. मेनिंजस यहाँ क्यों आएगा? यूज योर माइंड. एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, हमेशा याद रखो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट पूरा ऊपर से नीचे तक रहती है. आई थिंक वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाते समय सर ने भी बताया होगा. व्हाट इज अटैच टू द पोस्टीरियर सर्फेस? पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट. व्हाट इज अटैच्ड, अगर मैंने इसको आर्टिकुलेट कर दिया एक के साथ एक, नाउ लुक एट दिस, अगर मैंने इसको इसके साथ आर्टिकुलेट कर दिया, सेम बॉडी का नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है. व्हाट इज अटैच बिटवीन 2 लैमिनास? बोल कुछ भी. बिटवीन 2 लैमिना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहाँ पे होती है बच्चा, यहाँ पे 2 लैमिना के बीच में मैं पूछ रही हूँ. ये खाली रहता है क्या गैप? 2 लैमिना के बीच में गैप भरा रहता है ना. लिगामेंटम फ्लेवा, लिगामेंटम फ्लेवा रहेगी. ओके, इट इज अ लिगामेंट एक्सटेंडिंग बिटवीन 2 लैमिना बिकॉज व्हेन यू विल डू लंबर पंक्चर, द गेट अवे जो फीलिंग आती है ना हमको लिगामेंटम फ्लेवा को पियर्स करने के बाद ही आती है. ओके, एंड देन यू विल इंटर इनटू व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एरिया? क्या है? सेंट्रल कनाल. सेंट्रल कनाल स्पाइनल कॉर्ड में होता है. इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कनाल. ये पूरा वर्टिब्रल फोरामेन, एक वर्टिब्रल फोरामेन है, सब मिल गया तो वर्टिब्रल कनाल. सेंट्रल कनाल इज सीन इन स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल कनाल मत पहुंचने का, तो तुमको इसमें पहुंचने का इसके सबअरेक्नॉइड स्पेस में. सो यू हैव टू पियर्स द लिगामेंटम फ्लेवा, देन यू विल इंटर, यू विल पियर्स द ड्यूरा. ड्यूरा को भी पियर्स करने पे वो गेट अवे की फीलिंग है. ड्यूरा इज वेरी टफ. ड्यूरा एंड देन उसके बाद से सबअरेक्नॉइड स्पेस में अपन पहुँचते हैं. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द अटैचमेंट टू अ जनरल वर्टिब्रा. ये तुमको पूछते हैं आगे से ही हो गया. एंड हैव यू सीन अबाउट दीज ओपनिंग्स विच आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द बॉडी? ये होल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, सबको दिखे होंगे. ये होल्स छोटे छोटे दिख रहे हैं इस सरफेस पे लगे हुए छोटे छोटे होल्स. व्हाट आर दीज होल्स कॉल्ड? न्यूटन फोरामेन. और क्या पास करता है इस होल से? पढ़ के आओ और मुझे बताओ उसको क्या बोलते हैं. एंड दिस डायग्राम इज बेटर गिवन इन कनिंगम. ये छोटे छोटे होल्स दिखाए हैं और होल से पास करते हुए स्ट्रक्चर्स भी दिखाए हैं. और ये पूछते हैं एग्जाम में कि इस होल से क्या पास. उसमें न्यूट्रन फोरा बोला टू सम एक्सटेंट इट इज क्लियर, बट बहुत सारे फोरामिनास हैं. ओके, व्हाट पासेस थ्रू दीज स्ट्रक्चर? एक कनिंगम में एक डायग्राम है जिसमें पूरा बैक का मसल हटा के और सिर्फ यही एरिया ऊपर से नीचे दिखाया है. एंड दिस आर वेरी क्रूशियल स्पेसेस, तुमको जानना चाहिए. ओके, सो आई थिंक लंबर वर्टिब्रा, हमारा जो नहीं. अब सर ने जब बताया है तो मुझे ये भी बताओ. अगर सपोज आई एम थिंकिंग दिस इज L1, ओके, आई एम थिंकिंग दिस इज L2, ओके, who will tell that to what extent the crush of the diaphragm is going? डायफ्राम हो चुका है ना तुम्हारा? उनका डायफ्राम भी नहीं हुआ. आप ही बता दो क्रश ऑफ डायफ्राम कहाँ तक जाएगी? एक साइड, हाँ, एक साइड 3 तक जाती है. 3 तक जाएगी. किस साइड की? राइट साइड की 3 तक जाती है. जैसे वो क्रश आया ना तो 1 2 3 तक जाएगी. ओके, और वहाँ से टर्न होता है. ओके, 3 क्योंकि लिवर है ना नीचे. ओके, राइट वाला थोड़ा नीचे, और इधर लेफ्ट साइड की कितना L1 L2 तक की जाएगी. ठीक है, डन. नाउ इसके बारे में इतना ही पढ़ना है. मेक श्योर कि तुम्हारा ये सब पॉइंट्स मिस नहीं होना चाहिए. ये सब बताने आना चाहिए एग्जाम में. ओके, एंड यू नो द एग्जाम लाइक हाउ इट हैपन्स ऑस्टियोएम्ब्रियोलॉजी में. तुम कैसे पढ़ के जाते हो और क्या पूछते हो तुमसे. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेक्रम. ओके, सेक्रम वर्टिब्रा. सेक्रम वर्टिब्रा इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 इंडिविजुअल सेक्रल वर्टिब्रास. 5 वर्टिब्रीज होते हैं, वो सारे फ्यूज़ कर जाते हैं. तो अलग अलग वर्टिब्री फ्यूजन के बाद से यू कैन सी द रेमिनेंट्स ऑफ दोज फ्यूजन. कैसे देखेंगे? पहले काउंट कर लो वर्टिब्रल बॉडी. पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये कॉक्सिक्स के लिए पॉइंट है. ओके, जहाँ जहाँ ये फ्यूजन होती है, अब वर्टिब्रा रहेगी तो 2 वर्टिब्रा के बीच में क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क.
जहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क का फ्यूजन है यू विल गेट सच क्रेस्ट. ओके, ऐसा क्रेस्ट दिखेगा. दीज आर द रेमिनेंट शोइंग दैट देयर वाज अ इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन देम. ओके, उसके बाद फ्यूजन के बाद से जो हर वर्टिब्रा के नीचे जो तुमको होल्स दिख रहे हैं, ऑन द बैक साइड ऑल्सो यू आर गेटिंग होल्स. व्हाट आर दीज होल्स कॉल्ड? वेंट्रल सैक्रल फोरामिना, डॉर्सल सैक्रल फोरामिना. सो वेंट्रल सैक्रल फोरामिना हो गया, डॉर्सल सैक्रल फोरामिना हो गया. ठीक है, अभी देखते चलो. तो इतना तो देखने से लग रहा है कि ये फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है, उसका ये बॉडी है. दिस बॉडी हैज़ गॉट अ शार्प मार्जिन. दिस इज कॉल्ड सैक्रल प्रोमोन्ट्री. ओके, सैक्रल प्रोमोन्ट्री. एंड इट हैज़ गॉट अ ब्रॉड ट्रांसवर्स प्रोसेस. यही है ना ट्रांसवर्स प्रोसेस? अगर इसको कंपेयर किया एक जनरल वर्टिब्रा से तो ये उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस होगी. तो S1 की ट्रांसवर्स प्रोसेस इज वेरी ब्रॉड. ओके, देखो सो रहा है, वेरी ब्रॉड, एंड दैट इज कॉल्ड एला ऑफ द सैक्रम. एला मीन्स विंग. ये दिस इज द विंग ऑफ द सैक्रम. फर्स्ट sacral vertebra, the broad and transverse process is broad and it is wing like. It is called ala of the sacrum, and this sharp anterior margin of S1 is called sacral promontory. What is the significance of sacral promontory? During gynecological posting na you will get a chance to do PV examination. Normal delivery, normal labor में अगर कोई lady रहती है, and then you will see that JRs, they are doing PV examination. When they will do the per vaginum examination, they are going to, you know, the sacrum is like that, patient is lying down. Okay, they are going to, the fingers are big enough, they are going to touch this sacral promontory. वो टच होता है एंड वो फील करते हैं ये टच हो रहा है, मतलब सैक्रल का पोजीशन कैसा है, पेल्विक का रूमीनेस चेक करते हैं कि कितना रूमी है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है. तो दीज डायमीटर्स हमेशा चेक करते हैं और एंगल्स भी चेक करते हैं पर वजाइनम एग्जाम. और मीन वाइल देयर आर सो मेनी इक्विपमेंट्स लाइक अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी इज देयर. तो आज तो नॉर्मल टेक्निक से सब कुछ मेजरमेंट हो जाता है डिजिटल, बट मैनुअल टेक्निक्स आर स्टिल यूज्ड. ठीक है, तो ये हो गया सैक्रल प्रोमोन्ट्री मैंने बोला. अब नाउ टर्न बैक साइड. हु विल टेल व्हाट आर दीज थिंग्स बेस्ड अपॉन योर प्रीवियस नॉलेज? सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट ऑफ S1. इसी तरह इसमें सारे आर्टिकुलर फेसेट रहेंगे. अब क्या हो गया है, सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है? इट्स अ मिड लाइन. व्हाट इज दिस? स्पाइनस प्रोसेस. ओके, वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस है जो फ्यूज होने के बाद से ऐसा एक क्रेस्ट लाइक दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड मीडियन सैक्रल क्रेस्ट. ठीक है, मीडियन सैक्रल क्रेस्ट. अभी चलो आगे बढ़ो. आर्टिकुलर फेसेट सबके फ्यूज हो गए हैं. ओके, सबके आर्टिकुलर फेसेट सुपीरियर, इसका सुपीरियर छूट गया है और नीचे वाले के सारे फ्यूज होने लगे हैं. उनके फ्यूज होने की वजह से इफ यू विल सी हियर देयर इज एन इरेगुलर क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक मीडियन के जस्ट बाजू में. दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट. इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ आर्टिकुलर फेस. ओके, आर्टिकुलर फेसेस. उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑल्सो गेट फ्यूज्ड. ओके, ट्रांसवर्स प्रोसेस सबके फ्यूज हो गए, जिसकी वजह से ये जो सैक्रल फोरामिना था ना, उसके लैटरली यू विल गेट अ क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर. नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट यू विल गेट अ क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर. दैट इज कॉल्ड लेटरल सैक्रल क्रेस्ट. तो समझ में फिर से बताती हूँ. स्पाइनस प्रोसेस गॉट फ्यूज. देखिए इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही ओपन दिख रहा है, बट जनरली इट इज़ ऑल्सो फ्यूज. यू नो, सैक्रम में तुमको बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं. ओके, ये सैक्रल स्पाइनस प्रोसेस देखो फ्यूज नहीं है. ओके, पहले से फ्यूजन शुरू होता है एंड ये जाता है फोर्थ तक. लास्ट वाले का जो सैक्रल दैट मिड लाइन जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ना, वो फ्यूज नहीं करता है, जिसकी वजह से एक इन्वर्टेड यू शेप डिफिशियंसी नीचे में क्रिएट होती है. दैट इज कॉल्ड सैक्रल हायटस. हायटस मीन्स ओपनिंग ना. दिस इज कॉल्ड सैक्रल हायटस. एंड नीचे का जो स्पाइनस प्रोसेस अनफ्यूज हो गया है, अनफ्यूज रह गया है, वो दो ट्यूबरकल के फॉर्म में रहता है. दैट इज कॉल्ड सैक्रल कॉर्नू. क्यों इतना सब पढ़ना है? सैक्रल हायटस, सैक्रल कॉर्नू, बिकॉज जो छोटे बच्चे आते हैं ना सर्जरी पोस्टिंग के लिए, सर्जरी में ऑपरेशंस के लिए, सपोज छोटे बच्चों का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप नहीं है एंड या फिर हिप डिसलोकेशन है एंड दे वांट टू गिव लोअर बॉडी का एनेस्थीसिया ना, कॉर्डल एनेस्थीसिया. कॉर्डल एनेस्थीसिया जब देना चाहते हैं ना, तो ये एरिया सैक्रल कॉर्नू उनका फील करते हैं बच्चों में, पीछे ऐसे टेल वाले रीजन में फील करते हैं जहाँ पे ये ओपनिंग है, क्योंकि यहाँ से जो तुमको निकलेगी ना सबअरेक्नोइड स्पेस में, वो एनेस्थीसिया देते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉर्डल एनेस्थीसिया. ओके, व्हेन यू विल गो टू फर्दर क्लासेस, एनेस्थीसिया की क्लासेस लगेंगी, देन यू विल कम अक्रॉस सो मेनी टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया. तो
कॉर्डल एनेस्थीसिया सैक्रल कॉर्डो एंड सैक्रल हाइएटस को फील करके देते हैं. ओके, डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया विच लेवल दे वांट टू एनेस्थेटाइज. डन, समझ आ रहा है? हाइएटस कॉर्डो समझ में आया. दिस एरिया इस थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है. देख, ये पहले वाले में इसको कंपेयर करूँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर वाले में फ्यूजन नहीं हुआ है, इसमें फ्यूजन हो चुका है. ओके, सो इट मे बी इट्स वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सेक्रम. ओके, इट्स अ वेरी वेरिएबल काइंड ऑफ बोन. ओके, जो तुमको दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि सारे में वही दिखे, बट ये हाइएटस एंड कॉर्नो दे आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट. ठीक है. अब एक चीज़ यहाँ पे जो बंद हुआ, अब तुमको ये बताना है व्हाट इज दिस कॉल्ड. सेक्रल, सेक्रल कैनाल. करेक्ट, दिस इज कॉल्ड सेक्रल कैनाल बिकॉज इसके थ्रू होके क्या पास करेगी बच्चा, इसके वर्टिब्रल फोरामेन से क्या पास करेगी, स्पाइनल कॉर्ड. इससे क्या पास करेगी, फाइलम टर्मिनल आएगा, क्योंकि हमारा L1 लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है. अडल्ट में L1 लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, तो बचता क्या है, कॉर्डा इक्विना. याद है ना, कॉर्डा इक्विना एंड फाइलम टर्मिनल. अब इसमें से क्या होता है ना, कॉर्डा इक्विना पास हुई, फाइलम टर्मिनल पास हुई, अलॉन्ग विद दैट जो भी हमारे स्पाइनल सेक्रल नर्व्स होंगे, सेक्रल क्रेनियल नर्व्स भी होंगे ना, सेक्रल स्पाइनल नर्व्स भी होंगे ना, तो उसका वेंट्रल डिवीजन. अब सुनो, अभी उसी के साथ पढ़ लो. जो हमारा कॉर्डा इक्विना गया, ठीक है, कॉर्डा इक्विना से नर्व्स निकलेंगे बाहर, करेक्ट ना, नर्व्स निकलेंगे तो कौन से नर्व होंगे, दैट विल बी द सेक्रल नर्व. करेक्ट. और हर एक नर्व जब निकलती है तो उसका एक वेंट्रल डिवीजन हो जाता है, उसका एक डॉर्सल डिवीजन हो जाता है. करेक्ट ना. सो वो जो कॉर्डा इक्विना से नर्व्स निकल रहे हैं, उसमें से एक नर्व निकलेगी यहाँ से, दैट विल बी द वेंट्रल रमाई ऑफ S1. गेटिंग माई पॉइंट. एक नर्व निकलेगी यहाँ से, इस लेवल पे, वेंट्रल रमाई ऑफ S2. वही लेवल पे, जहाँ S1 के लेवल पे जहाँ पे वेंट्रल निकली थी, वहीं से पीछे से निकलेगी डॉर्सल रमाई. ओके, डॉर्सल रमाई ऑफ S2, डॉर्सल रमाई ऑफ S3, इस तरह. और S5 पे जाके खत्म हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, तो खत्म हो गई ना. उसके बाद बच गया क्या, एक टेल, दैट इज कॉल्ड द फाइलम टर्मिनल. वो सबसे नीचे जाएगा और जाके कॉक्सिक्स पे अटैच हो जाएगा. यू नो दिस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द स्पाइनल कॉर्ड गोज. L1 पे खत्म हो गई और वहाँ से जो निकली वो कॉर्डा इक्विना निकली, फाइलम टर्मिनल निकली, टर्मिनल नीचे तक जाके कॉक्सिक्स पर अटैच हो गया और हमारे कॉर्डा इक्विना से सारे स्पाइनल नर्व्स निकल के सप्लाई दे देंगे रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स. ठीक है, डन. आई थिंक मैंने डू आई नीड टू रिपीट, दिस इज द मीडियल क्रेस्ट, इंटरमीडिएट क्रेस्ट and lateral crest. Okay, and these are formed by the fusion of spinous process, articular facet and the transverse process respectively. थोड़ा सा गोरा सैक्रम देखो, इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. मीडियन क्रेस्ट अच्छी दिख रही है, इंटरमीडिएट थोड़ी बहुत दिख रही है, बट लैटरल अच्छी दिख रही है. इंटरमीडिएट और लैटरल में कन्फ्यूजन नहीं. जो ये डॉर्सल सैक्रल फेरामिना है ना, उसके मीडियली है, दैट इज इंटरमीडिएट, और जो उसके लैटरली पड़ेगी दैट इज द लैटरल. डन. ठीक है. अब वहीं पे, सिंस ये ब्लैक है तो तुमको इतना समझा नहीं, ये एरिया देखने के बाद नाउ सी दिस लैटरल. अच्छा, एक चीज़ है जो मैंने बेसिक भूली, दिस इज द वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस. समझ आ रहा है ना, इतना तो तुम समझ जाओगे. दैट इज अज्यूमिंग दैट मैं थोड़ा आगे बढ़ी. अब दीज आर द लैटरल सरफेस. नाउ लुक एट द लैटरल सरफेस. क्या दिख रहा है तुमको, क्या है पहले ये तो बताओ. ये इन्वर्टेड L शेप्ड आर्टिकुलर फेसेट विच आर्टिकुलेट विद द हिप बोन. ठीक है, ये हिप बोन से अटैचमेंट होता है. अब हिप बोन के आजू बाजू जहाँ पे, तो फॉर्मिंग विच जॉइंट, बोलो, फॉर्मिंग विच जॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जॉइंट, कम ऑन यार. दो बोन्स के नाम बताओ जो फ्यूज हुए. सैक्रोपेल्विक कुछ नहीं होता. सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट, विच टाइप ऑफ जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट है. हिप जॉइंट नहीं बोला, सैक्रोइलियक जॉइंट बोला. हिप जॉइंट इज, हिप जॉइंट को क्या बोलोगे, इलियो. हाँ, तो वो एसिटाबुलम के साथ फीमर का. मुझे हिप बोन भी लाना चाहिए था, मुझे लगा कि इनको याद होगा. यहाँ पे इलियम का आर्टिकुलेशन होता है और हिप बोन में फीमर का आर्टिकुलेशन लेटर ऑन होता है. यहाँ पे भी खडेबर नहीं, ये नहीं है ना, स्केलेटन नहीं है. सी कॉन्सेप्ट सही तुमको समझ आ रहा है कि नहीं. इससे दो हिप बोन अटैच होंगे, हिप बोन के लैटरल से फीमर अटैच होगा, दैट विल बी बॉल एंड सॉकेट. ये तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है. ये जो है इससे आके इलियम अटैच होगी एंड दिस इज द प्लेन साइनोवियल जॉइंट. प्लेन, एकदम फ्लैट है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट. सैक्रोइलियक जॉइंट इज द प्लेन साइनोवियल. मल्टीपल टाइम बताया जाता है तुमको, रेडियो के क्लास में बताया जाता है, तो जो भी पढ़ते हो उसको वहीं पे याद रखा करो. ओके, ये जो इतना बड़ा इन्वर्टेड L शेप
फेसेट दिख रहा है ना दोनों साइड में, दैट इज फॉर द आर्टिकुलेशन विद द दैट सैक्रोपेल्विक सरफेस पे जो आर्टिकुलर फेसेट होता है हिप पे। नोट्स गए, नोट्स ले, सबने खोले नोटबुक। ये इनके भरोसे है, जाने दो, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ कम नहीं आता। सेक्रोइलियक जॉइंट, ओके, सेक्रोइलियक जॉइंट आगे से देखोगे तो वेंट्रल एंड पीछे से देखोगे डॉर्सल, दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग वेंट्रल सैक्रोइलियक लिगामेंट एंड डॉर्सल सैक्रोइलियक लिगामेंट, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स इसको माना जाता है, ओके। एंड दीज लिगामेंट्स आर गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ओके। पार्चुरेशन में ये मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग बिकॉज जो डॉर्सल सैक्रोइलियक लिगामेंट, व्हेन यू विल रीड योर बुक ना घर जाने के बाद से, यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो डिप्रेस्ड एरिया दिख रहा है ना जोन, इससे वहाँ पे डॉर्सल सैक्रोइलियक लिगामेंट का रिलेशन होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कवर रहता है। व्हेन यू विल सी इन लाइव बॉडी ऑल्सो ना, ये पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग लिगामेंट से कवर होता है, ओके। इतना ईजी जॉइंट नहीं है बिकॉज फ्लैट है ना, फ्लैट को प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए अनलाइक द बॉल एंड सॉकेट। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डॉर्सल एंड वेंट्रल सैक्रोइलियक लिगामेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट। नाउ अभी फिर से मुझे कहाँ से शुरू करना है। वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट हियर इज दैट एला रीजन। एला वॉज दिस ब्रॉड थिंग, ओके। एला, देर इज अ रिलेशन ऑन एला, important relation, just like you have read the relation on the neck of first rib. Have you read about the relation, what is there, what is related to the neck of first rib? देखो ये भी भूल गए, हाँ। फर्स्ट रिब ऐसा टर्न होके जा रही थी, ब्रॉड हो रही थी आगे, पीछे नेक रीजन था, हेड के बीच में नेक रीजन था, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऊपर से नीचे तक रिलेटेड थे। कितना रट के पड़ा था, जाने दो। यहाँ के स्ट्रक्चर्स मैं बता देती हूँ। दिस इज कॉल्ड ऑयल्स, OILS, ओके। ऐसे 4 स्ट्रक्चर इस पे रिलेटेड होता है, ऐसे जाते हैं ऊपर से नीचे तक। OILS सबसे पहले होती है ऑब्ट्यूरेटर नर्व। आई से क्या हो गई? नहीं, आई से क्या हो गई? क्या? इंफीरियर एपिडाक्सिस। आई से होती है तुम्हारी एक नर्व ही है, रुको मैं आई टेल यू। OIL, एल से होती है लैटरल सैक्रल वेसल्स, ओके। नहीं, हाँ, रेक्टिफाइंग माई सेल्फ। O से ऑब्ट्यूरेटर नर्व, आई से इलियोलंबर आर्टरी, ओके। एल से लंबार प्लेक्सस का एक डिवीजन, ओके, लंबार प्लेक्सस एक डिवीजन, ओके। एंड S से होती है सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है ना पीयूष, मिला है? ऑब्ट्यूरेटर नर्व, इलियोलंबर आर्टरी, एल से हमारे लंबार प्लेक्सस का एक नर्व, लंबार नर्व जाएगा, ओके। एंड एस से सिंपैथेटिक प्लेक्सस। तो ये 4 स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड होते हैं। आप समझो इलियोलंबर वेसल दिख रही है, इलियोलंबर वेसल, ओके, विच इज़ अ पार्ट, विच इज़ अ डिवीजन। व्हेन यू विल रीड ना, अब यहाँ पे किस वेसल के डिविजन्स आएंगे? तुम्हारा अब्डोमेन अभी तक पूरी तरीके से हुआ नहीं है। अब्डोमिनल एओर्टा नीचे जाती है, इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन। व्हाट आर दीज 2 डिविजन्स? कॉमन आइलियक, कॉमन आइलियक पहले जाएगी, एंड कॉमन के 2 डिवीजन, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल तो हमारी लोअर लिम्ब में चली जाएगी। ये जो इंटरनल होती है वो इधर के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई, पेल्विक एंड पेरिनियल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई। तो वही इंटरनल इलियक का बागे में डिवीजन होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, एंड उसी से ब्रांचेस निकलते हैं। तो इलियोलंबर आर्टरी इज अ ब्रांच फ्रॉम दैट इंटरनल इलियक आर्टरी ओनली, ओके। बाद में लेटर ऑन यू विल कम अक्रॉस के एंटीरियर का डिवीजन है कि पोस्टीरियर, बिकॉज देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, ओके। डन, समझ आया? तो ये ऑयल स्ट्रक्चर हो गए इससे रिलेटेड। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मसल विच आर अटैच्ड टू दिस anterior surface as well as posterior surface. Ready for that? अब यहाँ पे इलियम होती है, ओके। इलियम के इलियाक सरफेस पे कौन सी मसल होती है? इलियाक सरफेस है। मैं तो इतना क्लू दे रही हूँ। सो अगर ये इलियक सरफेस है, सो तुम्हारी इलियाकस मसल विल बी अटैच लाइक दिस, ओके। सो एला ऑफ द सैक्रम is covered by a muscle that is called iliacus. तो इलियाकस यहाँ पे भी और इलियाकस उसके इलियक सरफेस, पूरा इलियाकस। तभी तो ऊपर से श्वास मेजर आ रही है, यहाँ से इलियाकस आ रही है, दोनों नीचे जाके कॉमन टेंडन हो जाती है, इलियोश्वास का टेंडन। वेयर इट इज अटैच्ड? शीथ तो है, बट वेयर द इलियोश्वास इज अटैच्ड? फीमर पे ही जाएगी ऑफकोर्स। कहाँ पे? एक टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, बोलो। ग्रेटर या लेसर ट्रोकैंटर, ठीक है। आई एम हैप्पी दैट यू आर टेलिंग एटलीस्ट कि ग्रेटर और लेसर ट्रोकैंटर।
ठीक है. What is attached to the greater trochanter of femur? ग्लूटियस मसल, याद रखो, मीडियस और मिनिमस, मैक्सिमस नहीं. ओके, ठीक है. इलियोश्वास दोनों ऊपर से इलियाकस, ऊपर से श्वास मेजर आई, नीचे से इलियाकस आई, उन दोनों कॉमन मिलके एंड ये टेंडन तुमको फील होता है, यू नो, जब तुम ट्रायंगल, सब कुछ बहुत इंटरकनेक्टेड है, यू नो. अगर मैं बताने चलूँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए लेट्स कंक्लूड इट हियर ओनली. दोनों के कॉमन टेंडन हो जाते हैं, दे बोथ आर गोइंग टू अटैच ऑन द जैसे ट्रोकैंटर ऑफ द फीमर. ओके, इलियोश्वास. ठीक है, तो ये इलियाकस तुमको नहीं भूलना है. अगली मसल है, आई एम आस्किंग यू, विच इज सपोज टू अ की मसल of the gluteal region. Piriformis. Okay, so piriformis, how it is attached? There is a speciality in the attachment. हाँ, 3 shaped manner में. ये 3 में ही 3 उंगलियाँ हैं ना. अब देखते चलो, ये सबसे पहला sacral foramina, ये दूसरा sacral foramina, ये छोटा छोटा सा दिख नहीं रहा है. फीमेल है. सही है. फीमेल में बता सकते हैं, इसमें ये टूट गई है. ये देखो, इसमें 4 दिख रही है प्रॉपर. ओके, अब देखो, पहले को छोड़ दो, ये जो ट्रांसवर्स एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे एक उंगली रखो, उसके नीचे एक उंगली हो, 3. ये जो पीक दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये 3 शेप्ड मैनर में वो मसल का ओरिजिन होता है, पायरिफॉर्मिस. और वो ऐसा जाता है एंड देन टेपर हो जाता है. ओके, यहाँ से निकला, टेपर हो गया, और कहाँ से बाहर निकल जाता है ये? नहीं, ग्रेटर साइएटिक फोरामेन से. ऑब्चुरेटर फोरामेन मुझे तो क्या हिप बोन चाहिए, कोई एक हिप बोन किसी से मंगा देना. सुन ना, इसको को बोलना. सही, मेरा कबर्ड देखा है, मेरे रूम में जाना, मेरा रूम देखा है ना, तुम लोग के पास है किसी के? हिप्पोन में दिखाती हूँ वो कैसे जाता है. मेरा कबर्ड लोखंड वाला खोलना, उसी में रखी होगी हिप्पोन, कोई सी भी लेके आना. ओके, सो ये 3 शेप्ड मैनर में हमारा पायरिफॉर्मिस ऐसा. व्हाई इट इज कॉल्ड पायरिफॉर्मिस? पायरी मतलब क्या होता है? आम. पायरी आम. पायरी मतलब क्या होता है? इट्स अ फ्रूट ओनली. प्योर शेप. प्योर. ओके, सो पायरिफॉर्मिस प्योर मतलब कैसा? ऐसा ऊपर ब्रॉड और नीचे टेपर हो जाता है. पेयर शेप ऐसा ही रहता है ना, तुम्हारे मराठी में पेयर बोलते हैं, हम लोग प्योर बोलते हैं. ओके, ऐसा 3 शेप में वो निकलता है ब्रॉड एंड, और ऐसा टेपर हो जाता है, एक टेंडन हो जाती है, और वो हमारे ग्रेटर साइएटिक फोरामेन से ऐसा होते हुए पीछे चली जाती है. दैट इज ओनली ना कि हम लोग को ग्लूटियल रीजन में मिलती है, एंड दैट इज सपोज टू अ की मसल. बिकॉज व्हाई पायरिफॉर्मिस इज कॉल्ड द की मसल? व्हाई पायरिफॉर्मिस इज कॉल्ड द की मसल? अरे की मसल क्यों है? तुमको वो देखने के बाद क्या क्या पता चलता है ग्लूटियल रीजन में? कि हमारा उसके नीचे से ही साइएटिक नर्व जनरली निकलती है, पायरिफॉर्मिस के नीचे से. ये सब क्यों भूल गए तुम लोग? किया नहीं है डिसेक्शन, बट ये याद रखना है. तुम लोग अभी प्रीलिम्स के लिए अपियर होगे ना, तुमको सब कुछ पढ़ के जाना है, तब तुम्हारे लिए बहुत लंबा गिरेगा. इसलिए पढ़ो, अभी से पढ़ो पायरिफॉर्मिस, एंड ऐसे पढ़ो कि वो दिमाग में रहे. भूलता है बट ऐसे पढ़ो कि दिमाग में रहे. तो ये पायरिफॉर्मिस ऐसे निकल के पीछे से गई, तो याद रहेगा यहाँ पे पायरिफॉर्मिस का. प्रीलिम में तो सब इनका प्रीलिम यही मई मिडल नहीं, जून के फर्स्ट वीक में है. 9 जून फर्स्ट वीक, 9 जून बोल रहा है, मतलब फर्स्ट वीक के एंड में. आगे. थैंक यू सर. देखो अभी तुमको मैं दिखा देती हूँ. दिस इज द सैक्रोपेल्विक सर्फेस. पूरा ये सैक्रोपेल्विक, इस पे हमारा ये एल शेप्ड आर्टिकुलर फेसेट है, इसी का करस्पॉन्डिंग है वो, बिल्कुल ठीक है. ऐसा मिला, ये हो गया हमारा सेक्रो. ये दिख रहा है सेक्रो, पीछे से भी बोन देख लो कैसा दिखता है. सैक्रोइलियक जॉइंट, ये सैक्रोइलियक जॉइंट हो गया. अभी मुझे तुमको क्या बताना था? पायरिफॉर्मिस. हाय, तो पायरिफॉर्मिस इज कमिंग. नाउ लुक एट दिस. ये पायरिफॉर्मिस यहाँ पे थी. ओके, यहाँ पे थी, ठीक है, ग्रेटर साइएटिक फोरामेन की तरह. एक वॉलंटियर. ये देखो, ये इतना, ये ग्रेटर साइएटिक है ना, यहाँ से पायरिफॉर्मिस ऐसे अटैच थी, एंड देन इट कम्स आउट. लुक एट दिस, कम्स आउट, और फिर ये पीछे चली जाती है टेंडन के फॉर्म में. और इसके पीछे सब है, अगर ये पायरिफॉर्मिस थी, यहीं पे हमको मिलता है क्या? साइएटिक नर्व नीचे में. सो पायरिफॉर्मिस, इसका स्पेशलिटी तुमको पढ़ना चाहिए कि कैसे निकल रही है, कैसे जा रही है. इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस एरिया. ओके, दिस देन गोज थ्रू द ग्रेटर साइएटिक. ऑब्चुरेटर यहाँ पे है, ऑब्चुरेटर का नाम ही नहीं आना चाहिए. ऑब्चुरेटर है तो यहाँ से निकलती है और पीछे के सरफेस पे जाती है. देन यू सी द टेंडन ऑफ पायरिफॉर्मिस. जब उसको ट्रेस करोगे, आप लोगों ने ट्रेस किया था उसको, किसे आगे के साइड से आती है, वो समझ में आती है. तो पायरिफॉर्मिस हो गए, डन. तो
टू स्ट्रक्चर्स वी हैव सीन, इलियाकस, पायरिफॉर्मिस, देन ऑयल स्ट्रक्चर दिखा दिया। इसके अलावा एक और आर्टरी ऐसे पास करती है सिर्फ इसी के ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक। यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आर्टरी? दैट इज ऑल्सो टर्मिनल ब्रांच, दैट इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल एओर्टा, मीडियन सेक्रल आर्टरी। मीडियन सेक्रल आर्टरी सपोज टू बी अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल एओर्टा, ये मीडियन सेक्रल आर्टरी। ओके, तो मीडियन सेक्रल आर्टरी का रिलेशन है। डन? ऑयल से रिलेशन, मीडियन सेक्रल आर्टरी का रिलेशन, देन इलियाकस एंड देन पायरिफॉर्मिस। नाउ टर्न इट बैक, टर्न इट बैक। आप समझो कितनों को ये आर्टिकुलर सरफेस दिख रही है? दिख रही है ना सबको? उसके जस्ट नीचे जहाँ पे वो आर्टिकुलर सरफेस देखने पे समझ में आ रहा है कि ये पूरा लैटरल सरफेस, लैटरल बॉर्डर इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय दिस आर्टिकुलर फेसेट। कुछ 2/3 पोर्शन ऑक्यूपाइड है, द रेस्ट 1/3 इज एम्प्टी। करेक्ट ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पूरा आर्टिकुलर फेसेट इज नॉट एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द होल बॉर्डर, इट इज एक्सटेंडिंग अप टू द 2/3 एंड अप टू हाफ, डिपेंडिंग अपॉन किस जेंडर का है ये। दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। सेक्रम वर्टिब्रा का मेल एंड फीमेल डिफ्रेंशिएट करना पूछते हैं एग्जाम में। Okay, if I'll be remaining like I will leave it untouched, then later on जब भी हम लोग मिलेंगे we will discuss about this thing. So 2/3 portion is occupied and rest of the portion is empty. This lower area just below the facet is giving attachment to a muscle. देखते चलो अगर मैंने इसको कैसे अटैच किया, सॉरी, अगर मैंने इसको ऐसे अटैच किया। Now tell me, who is going to talk about the muscle which is attached here? एकदम exact बताना. Which muscle is attached here? क्या? What is this region? Gluteal region. Gluteal region. तो quadratus कैसे आएगा? हवा. What's your name? हवरा. Sorry, हवा is my daughter's friend. मुझे याद आया. हवरा ऐसा नहीं होएगा. ये ग्लूटियल मसल कोई है? कौन सी ग्लूटियस मसल है? कौन बताइए? मैक्सिमस है कि मिनिमस है? मिनिमस इधर रहती है, ये मैक्सिमस का एरिया है। भाई कैसे तुम लोग भूल जाते हो? ये वाला सुपीरियर स्पैन कहाँ है? एंटीरियर सुपीरियर स्पैन इज हियर, सो वहाँ पे मिनिमस, यहाँ पे मैक्सिमस। पोस्टीरियर। तो देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको अगर ऐसा पकड़ा ना, दोनों को आर्टिकुलेट करा दो, ठीक है? तो ये मैक्सिमस का एरिया है। सो रिमेनिंग एरिया यू नो ना, तो मैक्सिमस के कितने सारे अटैचमेंट पॉइंट्स हैं? सेक्रम से आता है, कुछ इसके पेल्विक ये डॉर्सल सर्फेस से आता है, देन लिगामेंट से आता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ट्रोकैंटर, व्हिच ट्रोकैंटर? दैट इज इंसर्शन। आई एम आस्किंग अबाउट, बच्चे कहाँ मिलाते हैं? इंसर्शन इज ऑन नो, हाँ, इंसर्शन ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस इज वेयर? शाफ्ट पे। कहाँ पे? उस पर एक ग्लूटियल टिब्रोसिटी होती है। रेक्टिफाई योर सेल्फ हियर ओनली, नहीं तो नहीं सीखोगे। ग्लूटियस मैक्सिमस वहाँ से शुरू हुई, यहाँ से, और नीचे जाती है, और शाफ्ट पे ग्लूटियल टिब्रोसिटी होती है, उसी पे अटैच होती है। जस्ट लाइक डेल्टॉइड टिब्रोसिटी वहाँ पे होती है ना ह्यूमरस में, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल। सब ऐसे ही सिमुलेट करके पढ़ने का, नहीं तो सब हवा हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। सुनो, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस, ओके। और यहाँ पे जो एरिया छोटा सा बचा हुआ है आर्टिकुलर फेसेट, दैट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय द ग्लूटियस मैक्सिमस। ये सब इतना ही छोटा बताने के लिए मैंने पूरी स्टोरी तुमको बताई कि पीछे से पूरा अटैचमेंट होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। सो ग्लूटियस मैक्सिमस इज ऑल्सो टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द सेक्रम लोअर टू द आर्टिकुलर फेसेट, ठीक है। उसके बाद तुमको करना क्या है, ये मीडियन सैक्रल क्रेस्ट है ना, उसको लेते हुए, और ये जो लैटरल सैक्रल क्रेस्ट है, इसको लेते हुए एक यू शेप्ड एरिया बनाना है। That is for the attachment of erector spiny muscle. Erector spiny muscle is attached in a U-shaped manner starting from the median till the lateral crest. और उसके बीच में जो U का गैप हो गया ना, that is filled by the multifidus muscle. Okay? Multifidus अंदर रहेगी, erector spiny बाहर से रहेगी। एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, इस पे erector spiny muscle का अटैचमेंट कहाँ होता है? ये सब मैं तुमसे ना बोनी पेल्विस में फिर पूछने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी, अगर मैं रही बैच टीचर तो तुम्हारे लिए, बोनी पेल्विस में सारे मसल्स का अटैचमेंट पढ़ के आओगे तुम। क्या? इलियक क्रेस्ट बहुत बड़ा है, कहीं तो है, ठीक है, जाने दो।
चलो एग्जाम में ऐसे ही, तो ऐसे बड़े बड़े मसल्स जो होते हैं ना वो तुमसे स्पेसिफिकली पूछते हैं, यू शुड बी रेडी टू आंसर। ओके, अब एक चीज़ और रह गई, एक छोटी सी चीज़, जब ग्लूटियस मैक्सिमस जहाँ पड़ा था ना उसी के नीचे और थोड़ा नीचे जाओगे, देयर इज द अटैचमेंट ऑफ वन मसल दैट इज कॉल्ड कॉक्सीजियस मसल। कॉक्सीजियस हैज़ नॉट बीन टॉट टू यू बिकॉज व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द जब भी तुम्हारा पेरिनियम रीजन जब भी पढ़ाएंगे ना, देन वी विल टॉक अबाउट कॉक्सीजियस मसल। बट इतने सारे मसल्स एटलीस्ट याद कर लो, ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, इरेक्टस स्पाइनी हो गया, मल्टीफिडस हो गया एंड कॉक्सीजियस। दिस इज ऑल अबाउट द अटैचमेंट विच इज सीन एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। आई हैव टॉक्ड अबाउट कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स अंदर जाते हैं, क्या, हाँ मैंने तुमसे क्या बोला था, क्या अंदर जाते हैं, कॉर्डा इक्विना एंड फाइलम टर्मिनल along with that cranial spinal nerve, sacral spinal nerves की कुछ ब्रांचेस, ठीक है ना। निकलता क्या है बाहर, सिर्फ फाइलम टर्मिनल बाहर निकलती है, कॉर्डा इक्विना खत्म हो जाती है हमारी। ओके, तो सिर्फ फाइलम टर्मिनल निकली और कॉक्सीजियस स्पाइनल नर्व निकलेंगे। कॉक्सीजियल भी नर्व्स रहेंगे ना, सेक्रल नर्व्स तो निकल गए जगह जगह पे, कॉक्सीजियल रह जाती है जो ऊपर ही ब्रांच होती है बट निकलती है यहाँ से हाइएटस के पास से। तो याद रखना, व्हाट कम्स आउट फ्रॉम द सैक्रल हाइएटस इज फाइलम टर्मिनालिस अलोंग विद दैट कॉक्सीजियल स्पाइनल नर्व। L5 नहीं निकलेगी, L5 नहीं, L5 S5 हो गई खत्म, ये है ना फोरामिना, ये 5 है ना, 1 2 3 4 5 भी निकलती है, Hiatus। आई थिंक 5 1 से इसका देखना पड़ेगा एक बार कॉरेस्पॉन्डिंग की कौन किस लेवल पे निकल रहा है, बट 5 नहीं निकलती है, कॉक्सीजियल निकलती है, फाइलम टर्मिनल, समटाइम्स 5 ऑल्सो। ओके, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ Comparison of ala and body. कंपैरिजन ऑफ एला एंड बॉडी। नाउ यू कैन, अब कंपैरिजन क्यों करते हैं, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट द जेंडर डिफरेंस। सबसे पहले जेंडर डिफरेंशिएशन में एक इंपॉर्टेंट इंडेक्सिंग आती है, सेक्रल इंडेक्स। नो सेक्रल इंडेक्स, व्हाट इज कॉल्ड सेक्रल इंडेक्स। ओके, सेक्रल इंडेक्स किसको बोलते हैं, ये हो गई द विड्थ ऑफ द सेक्रम, ब्रेड्थ जिसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, एक एला से लेके दूसरे एला, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड द ब्रेड्थ ऑफ द सेक्रम। ये हो गई उंगली से नापो। एंड व्हाट इज कॉल्ड द लेंथ, प्रोमोन्ट्री के मिडल पॉइंट से लेके सैक्रम फिफ्थ का लास्ट पॉइंट। ओके, यहाँ से यहाँ तक हो गई वर्टिकल डिस्टेंस। व्हेन यू विल मेक अ रेशियो, टेक आउट द रेशियो ऑफ द ब्रेड्थ अपॉन लेंथ इनटू 100, दैट बिकम्स द सैक्रल इंडेक्स। ओके, दैट बिकम द सेक्रल इंडेक्स। आज यहाँ पढ़ा, कल को फॉरेंसिक में भी इसका यूज़ आने वाला है। व्हेन यू विल गो टू एफएमटी, वहाँ पे भी तुमको ये यूज़ आने वाला है, दैट इज कॉल्ड सैक्रल इंडेक्स। नाउ यू विल सी इफ, अब मैं बताती हूँ चीज़, सर ने जैसा बोला, फीमेल के केस में, अब ये देखो, ये बॉडी का मार्जिन हो गया, ये एला का मार्जिन इतना हो गया ना, दिख रहा है ना, एला यहाँ से यहाँ तक है, ये बॉडी है, ये एला है। रेशियो इन फीमेल, द बॉडी इज रिलेटिवली स्मॉलर एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल लेंथ ऑफ द एला। मतलब इसका अकेला लेंथ इसके लेंथ से बड़ा होगा, ज्वाइन कर दो तो काफ़ी ही बड़ा हो जाएगा, बट इसका इंडिविजुअल, अगर समझो ये अगर x है तो ये 1.5x या 2x होगा, करेक्ट। दिस इज द रेशियो, ठीक है, 1 2, तो 2:1:2, दैट इज द रेशियो इन फीमेल, ठीक है। अगर मेल को पकड़ लो, इसको रखो, देखो इसका एला रिलेटिवली छोटा नहीं दिख रहा है, एक तो पहले सेक्रम भी छोटा है, विक्रम से, बट इफ यू कंपेयर द बॉडी का लेंथ एंड द एला का लेंथ, इट इज रिलेटिवली बिगर, नॉट एक्जैक्टली 2x, बट इट इज रिलेटिवली 1.5 तो पक्का हुई होगा। ओके, तो इसका लेंथ एज वेल, इफ यू कंपेयर 1:1:1:2 और 1:1.5:1 इज केस ऑफ मेल। आर यू विथ मी, समझ आ रहा है? मतलब कि एला बड़ा होता है इन केस ऑफ फीमेल। वाई एला को बड़ा रखना है? अरे ये तो वेरी वेग टर्म, पार्चुलेशन। फिर से बताओ, इनलेट कैसे बनता है? कोई वॉलंटियर इधर रहो मेरे साथ। हाँ, आ जाओ इधर। ये तुमको मैं क्यों बता रही हूँ, कभी भी याद करते समय तुम्हें इजी रहेगा। अब इनलेट कैसे बना? इनलेट में बॉडी आई, आजा पकड़ो इसको साथ आते। सो इनलेट में हमारी बॉडी आई, इनलेट में एला आया, करेक्ट ना? हाउ यू विल से ना इनलेट, बोलो, अब तो दिखा दिया है, अभी बताओ इनलेट कैसे बनी है। पेल्विक इनलेट समझ है ना, ये है इनलेट, हाउ इट इज फॉर्म। सबसे पहले बॉडी, प्रोमोन्ट्री, एंटीरियर मार्जिन ऑफ द एला, देन व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ तो इलियोप्यूबिक इमिनेंस है। ओके, व्हाट इज दिस, दैट लाइन, सैक्रोपेल्विक लाइन, इलियक, दैट
यूलियोपुबिक इमिनेंस. Then what is this? What is this? अरे इसका नाम तो बता दो. अरे नहीं बाबा, इसका नाम तो बता दो. पेक्टिनेट लाइन याद नहीं है? इन लोग को पढ़ाया है या नहीं बताया? नहीं बताया. HNF में फिर तो फिर उतना बताने की जरूरत नहीं है. मतलब मेरा कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी है, दिस इनलेट इज रिलेटिवली बिगर इन केस ऑफ फीमेल. उसको बिग बनाने के लिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है. दैट इज़ वाई एला इज़ ऑलवेज बिगर टू द बॉडी. हमेशा याद रखो, प्रोमोन्ट्री का मार्जिन इज ऑलवेज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द एला का मार्जिन इन केस ऑफ इंडिविजुअल एला, इन केस ऑफ फीमेल. ओके, तो ये पहली चीज़ हो गई. दूसरी चीज़, तब ये जब देखा, इफ आई से sacral index is also a marker of gender. In which gender sacral index is more compared to the other one? In case of female, sacral index is more in case of as compared to the male, because हम लोग ले रहे हैं कैसे, breadth upon length. तो ये बड़ी होगी as compared to this one. And moreover, जब length छोटी बोली तो female में the vertical length is smaller. हमारा जो sacrum होता है ना, वो vertically smaller होता है. As well as one more thing, ये जो आर्टिकुलर फेसेट्स दिख रहे हैं ना, फेसेट्स, फीमेल के केस में ये 2-3 वर्टिब्रा तक ही एक्सटेंड होता है. मेल के केस में ये 3 पूरा कवर करता है. गेटिंग माई पॉइंट? 3. तो ये लेंथ बड़ी, आर्टिकुलर फेसेट की लेंथ बड़ी होती है, लेंथ एज अ होल बड़ी होती है. एंड इट इज सेड दैट इट रेंजेस फ्रॉम 113 to 116. ये रेशियो है. सैक्रल इंडेक्स जनरल रेंज इज 112 to 116. तो हमारे फीमेल में 16 के ऊपर तक भी जाता है, 16 तक भी रहता है. मेल के केस में 112 तक ही रहता है. इट इज़ द रेंज जनरली रिटन इन द बुक. ओके, सैक्रल इंडेक्स याद रहेगा तुमको. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, कर्वेचर देखने का. सैक्रल का कर्वेचर समझ में आता है? क्या है कर्वेचर? जो ये टर्निंग है ना, इफ़ यू विल मेक अ स्ट्रेट लाइन, इट विल ट्राई टू मेक इट लाइक पेंसिल लेके ऐसे बच्चे करते हैं ना, कर्व बनाते हैं. अगर इसके अकॉर्डिंग कर्व बनाने चलो, तो in case of female, if you will make a curve, it will look like a J-shaped structure, inverted J. In case of male, it will look like a C-shaped structure. You know, this is deeper. Here, this is like in case of male, and this is like vertically जाता है and then curve होता है in case of female. Okay? So male and female का ये difference भी समझ में आया. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बोलते हैं कि बॉडी मैसिव है, बॉडी छोटी है, बॉडी पे इंप्रेशंस मसल्स के ज़्यादा दिख रहे हैं इन केस ऑफ मेल बिकॉज ऑफ द पुल एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. बट दीज आर द बेसिक डिफरेंसेज यू शुड बी नोइंग. मोर ओवर, अगर कुछ रह जाएगा, सो व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द पेल्विक कैविटी, जिस दिन तुम्हारा रहेगा, वहाँ पे भी तुमको अच्छे से वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेज समझने होंगे. ओके, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल सब छोटे छोटे वैसे भी रहते हैं. करो बन.